Hello, dear aspirants. How are you all? Good. Chal, let's continue the statics part, right? So today we are gonna start chapter 2, and that is stable and unstable equilibrium. What I suggest you here for this statics part, there are some fixed dimensions of questions. Okay? No need to panic. Thing is, why we are always in some panic situation? Because suppose that I didn't feel this exam. I'm always thinking here, what can be the next? What can be the next? In these two chapters I'm talking. Catenary I have already dealt the same thing. This and next chapter, principle of virtual work. Actually what? I don't know, Marcus, who's named in the Telegram group? He said, पूरा खेल मैं यहाँ दोबारा लिखूंगा 10th level ज्योमेट्री का है. The game is of 10th standard geometry, what you learned. Problem is, as we grew, we forget these things, 10th level geometry, है ना? And we think these chapters are tough in nature. Not at all. Why I found these chapters very interesting during the preparation? Because I thought, yaar, once I am able to get the crux, everything is easy. So to get the crux, yes, I had invested lots of nights over that. So for that, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अपने को करना क्या है, इस पूरे का मैं आपको निचोड़ बोल देता हूं. व्हाट वी नीड टू डू इज अ फार्मूला और यू कैन से थीम, एंड सेकंड इज ज्योमेट्री. प्लीज हैव पेशेंस. What I mean by theme? So when I talk about stable and unstable equilibrium, here we will be discussing about center of gravity of some particular bodies. All those center of gravity and forces in 3D, that I will deal later on, because that is required for IFS exam. Directly questions are not being asked from here in the CSE exam. Fine. Only use of center of gravity is there. अब हमें क्या लगता है कि let's study the whole topic center of gravity for CSE also. Not at all. अपने को करना क्या होता है, let's say हेमीस्फीयर, स्फीयर. फाइन. एक तो अपने को इन दो बॉडीज का सीजी चाहिए होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ट्राइंगल के केस में लेट्स से यू हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसके केस में हाउ यू कैन से अबाउट द, लेट्स से दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल, दीज आर द टू इक्वल साइड्स एंड दिस इज द जी, and let's say this is V, this is D, A, B, C is the isosceles triangle. So how BG, this distance I am saying, okay बच्चे, this distance is 2 by 3 BD. Fine. Suppose that we have square, rectangle, ellipse,
कोन, बस रुक जाते हैं. These are some particular bodies for which in this chapter to solve questions we need to have idea about center of gravity. Fine. So let's say for this, when I say it is 3a by 8, a is the radius of that sphere. Fine. For this is the CZ. Here L by 4, ये इस हाइट का L by 4 जो बोला जाता, दिस हाइट का 1/4 डिस्टेंस. So what I suggest you, we will remember these CZs or bodies of these center of gravity for these bodies. It is more than enough for you to solve questions from here. Am I clear to you all? By using the CZ, अभी थीम में मैं काम कर रहा हूं. पहला चीज जरूरत पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो व्हाट आई मीन बाय थीम? थीम इज दिस कि दिस इज नॉट एन अनएंडिंग सी. देयर आर सम फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉडीज जिनके सीजी हमें पता होने चाहिए. फाइन. अब हम इसकी सेकंड थीम पर आते हैं. सेकंड थीम इज हाउ टू चेक. ओके बच्चे, फॉर दैट वी आर गोना डिस्कस कि ओके फॉर्मूला इज लाइक दिस, व्हाट आर दीज स्मॉल आर एंड कैपिटल आर लेस देन 1/r, व्हाटएवर इट इज. So second theme is what formula to be applied to solve the question. Fine. With these two themes and with a clear understanding of geometry, don't worry about geometry, it is just to calculate some angles कि parallel हैं, concurrent है, कैसे कहाँ पे क्या चीज करना है. Only that level of geometry required. And this chapter का game is over. Is that clear? आगे बढ़ूं अभी. चले. So don't worry, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा मत लो. चल. Let's start this chapter. Stable and unstable equilibrium. The basic idea is see, अभी जो मैंने बोला ना पीछे, actually this is the crux and for this your teacher is here. Rest of the things are written on the book. थोड़ा सा और डिस्कशन मुझे चाहिए आपको, उसके बाद तो बस आप खुद भी कर सकते हैं, राइट? अब आप यहां पर देखिए, सपोज दैट मैं आपको एक लाइक सरफेस दे रहा हूं. फाइन. अब मान लो यू हैव अ बॉल. आपने वो बॉल यहां पे रखा, ठीक है, और लेट्स से दिस इज माय बेस, है ना? समझिएगा इस चैप्टर को, बाकी तो फिर आपकी श्रद्धा है. Suppose that this ball is here, okay बच्चे, and this height is let's say Z or H, whatever you represent. Fine. And let's say sometimes the ball is here. What I'm saying, this wala ball and this is wall. And let's say this, कहाँ से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, you can say like this also, ठीक है? Let's say this distance is Z equals to H for this. अभी what we are trying to show is, अगर मैं if I disturb this ball, if this ball rolls on this surface, okay? So if this ball is at the point P is at the point Q, so what we can observe at the point P,
if this ball is slightly, what बच्चे, ball is slightly displaced, तो क्या होगा, ये यहां से अपनी पोजीशन से हटेगा, यानी कि अभी तो ये at this time this is in equilibrium, this is the position of equilibrium, this is the position of equilibrium. Fine. Now if I slightly displace this ball from its position of equilibrium, this may come here. ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इस बॉल को थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो पता चला बॉल अपनी पोजीशन पर वापस आ गई. दैट मे बी अ केस और नॉट. अब मैंने उसे और ज्यादा डिस्प्लेस किया तो वो अपनी पोजीशन से अलग हट गई. सो व्हाट इट सेज इज कि दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा तो ये अपनी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से दिस विल बी मूव्ड अवे. व्हाट अबाउट दिस, इस बॉल को आप यहां लेकर जाओगे, ये वापस अपनी पोजीशन में आएगी या नहीं आएगी? चेक इट आउट. कहने का मतलब दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एंड दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. Am I clear or not? किसी को कोई डाउट? आराम से बस सुनते रहिएगा. So what mathematicians observed कि if this height, what? Height किसका बच्चे? Position of equilibrium is maximum. This height is maximum, then this position of equilibrium will be unstable, and this, if this height is position of equilibrium is minimum, then position of equilibrium will be stable. Is that clear or not? एक जनरल परसेप्शन आपको समझ में आया? अब समझना व्हाट वी डू, अपने पास क्या क्या चीज हो सकती है. सपोज दैट एक स्फीयर है, लेट्स से वी हैव अ स्फीयर एंड अनदर हेमी स्फीयर व्हिच इज प्लेस्ड लाइक दिस, हो सकता है. सपोज दैट वी हैव अ हेमी स्फीयर एंड स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड इट. सपोज दैट वी हैव अ स्फीयर and an isosceles triangle is placed over it. Suppose that we have a hemisphere, समझते जाइए एकदम आपको, you will feel like enjoy. Suppose that we have a hemisphere and a cone with the same base, this. You getting my point or not? Such cases may arise. Now we are interested in knowing कि here position of equilibrium is stable for this, okay, or unstable. Position of equilibrium for this sphere is stable or unstable. Position of equilibrium for this isosceles triangle is stable or unstable. Position for this cone is stable or unstable. You getting my point? One more case you may have. Suppose that you have a slant height, this wala. Okay, and you have a sphere here, or you may have a hemisphere here, right? Abhi suppose that this angle is given to you, and let's say this is the position of equilibrium, and now you slightly displace this body.
and you are interested in knowing कि whether this position of equilibrium was stable or unstable. The same thing here. Suppose that I have a sphere and over this a square is placed, right? Now we are interested in knowing कि position of, if this square is slightly displaced, तो ये किस एंगल तक लेट से जा सकता है और उसके बाद नीचे चला जाएगा. You are interested in knowing this. So my dear students, these are the possible cases in this chapter. Every year you will have question from either of the case. Clear? And that is what the crux for what I was talking about. Means if we have solved this question 2-3 times, we are okay. कितना ही इसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व बना रहे, माय डियर फ्रेंड, ये पता है दिमाग में छप चुके हैं, इतने बार इसको किया है. एंड दैट इज द थीम, बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन आई रोट माय मेंस, तो उस टाइम पे आई वाज नॉट, मैंने बस इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, मुझे लगा बाकी कर लूंगा मैं जाके, लेकिन हुआ नहीं. In the second means I removed all those mistakes and I got to know कि in this chapter पूरा statics, पूरा fluid, rigid में भी even बस यही है. आप क्रक्स पकड़ जाइए चैप्टर का. अब फिर मैंने क्या किया, for these possible cases I solved these multiple times. Thank you. After solving multiple times, at some point of time I was in the situation कि okay, मतलब even if I'm taking T and I'm just thinking कि okay, this is the slant, यहाँ sphere रखा होगा, इस sphere की जगह if I took the square, what will happen? CG चेंज होगा. अच्छा, CG से ये वाला हाइट ही तो चेक करना है मुझे. अच्छा, इस हाइट को चेक करने के लिए how I can use this angle. मजा आ रहा है? I'm not Rahul Gandhi, okay? Thing is, why I'm laughing like this? Because अंदर से मुझे फील होती हैं ये चीजें. अब ये सारे केसेस है ना दिमाग में छपे हुए हैं कि अच्छा ये वाला है, सीधा इसमें इसका सीजी लेंगे, इसका सीजी लेंगे और दोनों का मीडियन जो निकालते हैं, स्मॉल w इंटू पहले वाले का सीजी प्लस कैपिटल W इंटू दूसरे वाले का सीजी, स्मॉल w प्लस W, और इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है. खत्म बात, हो गया सवाल. इस केस में सेम हियर, इस केस में कैसे मुझे करना है, स्मॉल r और स्मॉल कैपिटल R कैसे लेना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/h ग्रेटर देन 1/ स्मॉल r प्लस 1/ कैपिटल R वाला करना है, कौन सा करना है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो माई डियर एस्पिरेंट्स, if you are attending this lecture series, I am consistently saying कि my focus is on making you stable. फाइन. तो अभी चैप्टर का थीम समझ गए इसमें. अब अपने को करना क्या है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विल बी टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हाउ टू डील सच केस. कहां गया, इफ दिस बॉडी, मतलब इस टाइप का पॉसिबिलिटी है, देन हाउ टू डील, व्हाट फार्मूला टू बी यूज्ड. इफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, देन व्हाट फार्मूला टू बी यूज्ड. इन जनरल लेट्स से मुझे पता नहीं है ये कौन सा बॉडी है और दूसरा वाला कौन सा बॉडी है. इफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिए, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन हाउ टू हैंडल दिस H और Z. ρ1 ρ2 cos अल्फा अपॉन ρ1 प्लस ρ2. बस खत्म ये चैप्टर. क्लास खत्म नहीं हुआ अभी. वी हैव दीज मच केसेस एंड वी नीड टू डील दिस. चाय पी ले. चलो, now we will do one by one each of such cases and you people are suggested. I am saying don't think मास्टर ने पढ़ा दिया तो हो जाएगा.
until unless you do not solve these problems, तो ज्योमेट्री वाला पार्ट में where you can struck, you will never come to know. Got it? So to get to know about those things, you need to solve these problems. Fair? चल. Good morning. Okay. Now I am telling you one of the case 1. ठीक है? For one, I will suggest you some, like, give you a hint over that. कि suppose that this is the curved surface. It may be, बस इसको ऐसे मान के चलो. This is a curved surface. मे भी मान लो आपका ये sphere हो सकता है, कोई इशू नहीं है. Fine. And another article which is placed over this, suppose that this hemisphere or this itself can be a sphere. Fine बच्चे, let's say इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r एंड जो बॉडी ये वाला है बड़ा वाला बॉडी, लेट्स से इसका रेडियस है कैपिटल R. ओके बच्चे, चलो अभी क्या करना है, ये जो लेट्स से बॉल है, स्फीयर है, अभी मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया एंड ख्याल रहे this curved surface is rough enough to prevent sliding. इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इतना लाइक इस सरफेस से इसको स्लाइडिंग को प्रिवेंट ही नहीं कर पा रहा, ये यहां से तुरंत जाके वहां चला गया. सो दिस इज जस्ट अ वर्ड यू विल सी इन द PDF. अभी मैंने क्या किया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया और लेट से ये मूव होके अब ये स्फीयर इस टाइप से यहां पर पोजीशन हो गया. फाइन. अभी इसके सेंटर को मिलाते हुए मैंने ये लाइन खींच दिया, लेट से ओके. अब मान लो पहले इसका जो CG था, लेट से दैट इज G1 हियर, दैट इज द G1 is the center of gravity of upper body. ठीक है. G2, this is the CG of the upper body after slightly displacing. Fine बच्चे. Now we are interested in knowing, let's say this is the angle theta, let's say this is the angle phi. अब ज्योमेट्री समझना आप कहां फंस जाते हैं, कहां पढ़ना बंद कर देते हैं. मान लो ये जो आपने स्लाइड किया है, तो इसका ये जो स्लाइड वाला पार्ट होगा ये, और ये आर्क लेंथ, व्हाट बच्चे, आर्क लेंथ. सपोज अभी देखना जितना इसके टच में है, मान लो आपने इतना इधर स्लाइड किया तो ऊपर वाले का जो आर्क लेंथ आपको दिख रहा है ये वाला, और ये जितना स्लाइड किया है दैट विल बी सेम. सो लेट्स से दिस इज स्मॉल r रेडियस, है ना. सो आर्क एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस. सो अगर मैं कहूं इस वाले आर्क के लिए, और इसको कुछ नाम दे दूं, DEF. सो आर्क लेंथ DE विल बी सेम एज EF. तो आर्क लेंथ DE कितना हो जाएगा कैपिटल R के लिए, थीटा के लिए, एंड फाई क्या हो जाएगा स्मॉल r के लिए. सो DE कहने का मतलब r थीटा इक्वल्स टू स्मॉल r इंटू फाई. फॉर सच कॉम्बिनेशन आई हैव दिस
information. Now, I am interested in knowing, please be on the board. I am interested in knowing this height. Remember the पीछे वाला जो मैंने अभी आपको सरफेस ऐसे बना के दिखाया था. This is the height, Z I denoted. Getting? I am interested in knowing this height. अभी क्या करेंगे? Let's say this is the point B, this is CB, or this is the point H. So Z will be nothing but CH minus CB. और Z CH पूरा किया, CB ये घटा दिया, तो ये जो चीज है इसको मैंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया. फाइन. अब ये जो Z है, प्लीज हियर, इफ दिस Z इज मैक्सिमम, तो मेरा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या था? अनस्टेबल. इफ दिस Z इज मिनिमम, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या था? स्टेबल. Means now I'll be interested in finding the value of, देखेंगे बच्चे, interested, मैं आपको थीम बता रहा हूं जो 10 घंटे पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे. Interested in knowing the value of theta for which position of equilibrium is stable, is unstable. Okay बच्चे, what you are interested in knowing? Getting the value of theta, कि कितना तक स्लाइड किया जाए कि यहां पर ये वापस अपनी पोजीशन पर आने की क्षमता रखे. कितना तक स्लाइड किया जाए कि वो वापस पोजीशन में आने की क्षमता ना रखे, उसके बाद नीचे चला जाए. ये गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आया? अब ये आपका यहां से इंफॉर्मेशन आप यूज करते हैं इस Z का dz अपॉन, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप क्या करेंगे? dz अपॉन d थीटा फाइंड करेंगे, d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर फाइंड करेंगे. सो इफ it is maximum means this will be less than 0, if it is minimum means this will be greater than 0. Is that clear? Now check your PDF. पेज नंबर 122, एक्चुअली आर्टिकल स्टार्ट होता है पेज नंबर 121 पर, आर्टिकल 39. पेज नंबर 121 आर्टिकल 39 सॉरी 121 पे. कहां कहां आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, कहां यू कैन वेस्ट योर टाइम, आई पॉइंटेड आउट दोज पॉइंट्स. रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज रिटन हियर. क्लियर है? Why I am not detailing these small calculations? Because no one is gonna, please note, no one gonna ask you this derivation, but for your understanding I tried to convey my feelings, whatever I had confusions as an aspirant. Fine. End of the day, we need to remember some formulas. Okay, please come here. एक्चुअली मैंने उसको इनबॉक्स भी किया हुआ है. दस द इक्विलिब्रियम, इसी कंडीशन से, जब इसको लेस देन 0 के लिए जो कंडीशन, वट एवर द कंडीशन यू गेट फ्रॉम हियर, सो 1 अपॉन H ग्रेटर देन 1 अपॉन कैपिटल R प्लस 1 अपॉन स्मॉल r. द नेक्स्ट कंडीशन यू गॉट 1 अपॉन H लेस और इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R. This is your exam point. Fine. Please do remember exam point for case 1. किसके लिए? For case 1. And case 1 is what? Don't think कि this is general formula. This is very much restricted to the case when the base figure is curved surface. Okay, the upper figure is also curved surface. Then in that case we use this formula.
ओके बच्चे, हेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द, नीचे बेस वाला जो भी बॉडी आपने ले रखा है कर्व्ड बॉडी, capital R is this, small r is this. And what is h? H is this distance. H is the height of center of gravity of upper body from the level of contact of two bodies. Please to remember, capital R तो मैंने वहां पर दिखाई दिया है, तो जहां भी wherever you write the formula, please notice lower body का रेडियस, अपर बॉडी का रेडियस. This is the overall picture in front of you, what you need to carry after this lecture. कोई डाउट? नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, ये चीज याद रखेंगे. प्लीज टू रिमेंबर, एंड आई नो यू कैन बी कंफ्यूज कि सर आप वहां कैपिटल एच ले रहे थे फिर आपने ये लिया, तो आप जेड की बात करें या इसकी बात करें, द सेम इंटरप्रिटेशन यू विल हैव. सो ओवर दैट व्हाट वी हैव, जहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों बॉडीज का, वहां से अपर वाली बॉडीज का आपको या कॉम्बिनेशन का सीजी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. फाइन. केस 1 कर्व्ड, कर्व्ड, प्लीज डोंट फॉरगेट. ओके. केस 2 है आपका अभी क्या हो, सपोज दैट मैं यहां पर बनाता हूं केस 2. सपोज दैट दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी. फाइन बच्चे. In this case, again the same logic, same geometry is applied. It has the derivation also here. ये आप देखेंगे 40, article 40, page number 124. This वाला case. For this case, I will suggest you to read now because everything I have explained. अभी आपको इसको पढ़ना ही तो है, पढ़ लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना. Rest is your choice. I am not saying कि इस डेरिवेशन को आपको याद करना है. Again and again I am saying no one is gonna ask you. Okay? But फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर बैंड बचेगा. पेज नंबर 127 पर 3 फॉर्मूले लिखे हैं. 3 formulas are there. Please do remember. 1 upon h greater than 1 upon r minus 1 upon r. 1 upon h less than 1 upon h equals to वहां पे दिख रहा है क्या? So case 2, when you have a system like this, in that case, number first case stable, unstable. ये इक्वालिटी वाला केस, मार्क स्टार हियर, मार्क कहां गया, इक्वालिटी वाला. चेक इट आउट. In case of the case 1, when equality happens, then we say कि the equilibrium is stable और unstable का कैटेगरी आपने जो यहां से किया था पहले वाले में, stable, unstable. ओके बच्चे. अभी we will do questions, then you will get what is meaning for this. But do remember equality. A mentor is there. Okay. इक्वालिटी वाला यहां पर स्टार मार्क कर लेंगे दोनों में, ठीक है. इक्वालिटी वाला केस 2 में क्या होगा, वहां पर आपको याद रखना होगा कि 1 upon h is equal to 1 upon small r minus 1 upon capital R. The equilibrium is stable when capital R is greater than 2 into small r, and it will be unstable
it will be unstable when capital R is less than 2R. So please don't forget to remember these things. How these things are coming into picture, for your better understanding you can follow these. I told you everything. At the end of the day you have to remember case 1 का formulas, केस 2 के फॉर्मूलाज, इस वाले केस पर खास गौर रखेंगे. फाइन. अभी क्या किया, इन जनरल वाली जो मैं बात कर रहा था आपसे, 3 केसेस आर देयर, बस हो गया काम. डोंट वरी. सो दिस इज केस 2. केस 3, लेट्स से यू हैव एनी बॉडी लाइक दिस, आर्बिट्रेरी, है ना. तो यहां पर एक टर्म यूज होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. So persons who are new to the lecture, they can find this term in the differential calculus, radius of curvature. इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. यहां पर आपको बहुत ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूला यूज करने की नो नीड टू रिमेंबर हैवी फॉर्मूलाज हियर. ओके. एग्जाम पॉइंट में आपको बोल देता हूं, बस कार्टेशियन फॉर्म वाला, कार्टेशियन फॉर्म ये आप याद कर लेना. ठीक है. 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2/d2/dx स्क्वायर means if you have been given a surface y square equals to 4ax, सपोज दैट वन, ऐसे ही आपको दूसरा सरफेस दे दिया. सो फॉर दीज 2 सरफेसेस यू नीड टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ρ1 फॉर फर्स्ट, ρ2 ऑफ सेकंड, बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 + dy/dx का होल स्क्वायर पावर 3/2/d2/dx स्क्वायर. By using those formulas I can find radius of curvature. Is that clear? चलो, अब ये जो फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 1, बच्चे इसका चार्जर लगा दोगे, वहीं पे रखा है. तो अभी यहां पर, अभी मैं आ रहा हूं आपको आर्बिट्रेरी 41 पेज नंबर 127 आर्टिकल 41. सो आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, 3 केसेस आर देयर. अब आप इसको यहां पर देख लेंगे. H इज लेस देन, केस जो है आपका ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 + ρ2 cos अल्फा. H is greater than ρ1 ρ2 cos alpha upon ρ1 + ρ2. So number first, this is stable or unstable. Fine बच्चे. So we need to remember this case 3. अब ये अल्फा के बारे में आपको फिक्र नहीं करना है. ये बॉडी जिस एंगल पर यहां पर होगी, दैट एंगल इज, अगर आपको अभी याद आ रहा हो, वहां पर मैंने एक रो बनाया था, यहां पे स्फीयर, ऐसे हेमिस्फीयर लिया था. सो ये इंफॉर्मेशन यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. फाइन. एनी डाउट? गुड. These 3 formulas are there in this stable and unstable equilibrium. Any issue? I hope I tried my best. I tried my best. अब आपको मैं डेमो दिखाता हूं ताकि ये लेक्चर आज ऐसा लगे कि ये कंप्लीट लेक्चर मैंने लिया है. एक्चुअली व्हाट आई हैव डिजाइंड दिस लेक्चर स्टेबल एंड अनस्टेबल इन 2 पार्ट्स. नंबर फर्स्ट लेक्चर इज द डिस्कशन अबाउट द चैप्टर एंड बिट इजी एग्जाम्पल. इजी नहीं, वो भी PYQs ही हैं. easy examples to make you feel these formulas. And the next lecture will be completely of questions, whatever the possible cases I have discussed for you. Fine? Chalo. अभी इससे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं आएंगे, अब बस ज्योमेट्री का गेम बचा है और कुछ नहीं है. और ज्योमेट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, बहुत बेसिक ज्योमेट्री है. अच्छा हाँ, एक चीज़ आई विल से, वो बेसिक ज्योमेट्री अगर आपने सारे क्वेश्चंस एक बार लगा लिए ना, इफ़ यू ट्राइड दोज क्वेश्चंस, देन
2 मिनट के अंदर आप 10 नंबर वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सब पता रहता है कि कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, साइन रूल लगाना है, पैरेललोग्राम रूल क्या लगाना है, सब पता रहेगा आपको. सो आई अगेन एंड अगेन सजेस्ट यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. चलो, आई टेक सम एग्जाम्पल एंड मेक यू फील कि मजा आया ना. चलो, लेट्स से क्वेश्चन 1. What he said, a hemisphere rests in equilibrium. A hemisphere rests in equilibrium on a sphere of equal radius. ख्याल रखेंगे, what he said, of equal radius. Fine. So that equilibrium is unstable. क्वेश्चन सुनिए. So that equilibrium is unstable. Equilibrium is unstable when, ये अपने को शो करना है. ओके बच्चे, position is like this, radius means small r is a, capital R is a. Fine. So that equilibrium is unstable when the curved surface of the hemisphere rests on the other sphere. Means ये वाला surface इसके ऊपर है. तो अभी अपने को ये जो H है, we are always concerned about, let's say this is the इसको मैं कैपिटल G बोल रहा हूं. ये क्या है? CG ऑफ हेमीस्फीयर. So what I told you in the starting, कि in this chapter we need to have idea about center of gravity of some bodies. So when hemisphere I am talking about, so for hemisphere the CG is given by, let's say this is the O, usually इसको हम N से लिखते हैं. So इसके लिए रहेगा जो आपका height of CG. अभी मैं क्या बोलूँगा? Height of CG, that is represented by H, and that is nothing but ON minus OG. Check it out. यही तो H है. तो ये वाला डिस्टेंस इस पूरे में से माइनस कर दूंगा तो ये स्मॉल h मुझे मिल जाएगा, बिकॉज h was the height of center of gravity. Is that clear? So this is h. ON is what बच्चे? A. OG is 3a/8. बस आपको ये वाला, अगर आपने इस टाइप से है हेमीस्फीयर, तो इसका ये जो G है, सो दिस हाइट इज 3a/8. दिस यू नीड टू रिमेंबर. एक याद कर लिया आज, ऐसे रोज एक याद करते रहिए, आपका काम बन जाएगा. आई थिंक नॉइज स्टार्ट हो गया, मैं कंक्लूड कर रहा हूं बस. ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग, ये वाला जो हाइट है, दिस इज, हम इसको याद रखना है. फाइन. तो h का वैल्यू क्या मिल गया मुझे? 5a/8. स्मॉल r का वैल्यू a है, कैपिटल R का वैल्यू a है. क्या दिखाना है? इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. सो केस 1, राइट, केस 1 में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. व्हाट फॉर्मूला आई टोल्ड यू? इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल if this condition holds. If this condition holds, then only equilibrium will be unstable. देख लेते हैं भैया होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. चलो, 1/h, LHS का वैल्यू क्या होगा? 1/h, that is 5a/8 and that is 8/5a. RHS का वैल्यू क्या होगा? 1/a
प्लस 1 अपॉन ए दैट इज 2 अपॉन ए. सो 8 अपॉन 5a चेक कर लीजिए. 8 upon 5a is always less or equal to 2 upon a. Means this holds well. If this holds well, then this position of equilibrium will be unstable. आया मजा? तो कितना सवाल होता है, अब सोचिए इसको. अब मुझे दोबारा आपको बताना होता. सो व्हाट आई टोल्ड यू, देखिएगा प्रैक्टिस कैसे करनी होती है. एक बार समझ लिया, पहली बार में अगर टाइम के बारे में सोचोगे यू विल नेवर लर्न समथिंग. क्वेश्चन दिया, बोला एक हेमीस्फीयर दूसरे स्फीयर पे है, दोनों की रेडियस सेम है. तो बोला ठीक है चलो अब बताओ. अच्छा ये हेमीस्फीयर है, सो इसका आएगा 3a/8 पे, इसका CG जाएगा 3a/8 पे. तो टोटल कितना मुझे बचेगा, ये डिस्टेंस. अच्छा मैंने यहां पे ये चीज ली, दिस इज 3a/8, दिस इज OG इज 3a/8. इसको देखेंगे, दिख रहा है OG. whenever you have some sphere, हेमीस्फीयर, इसका सेंटर अगर O है, G इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये जो OG डिस्टेंस होता है ये होता है 3a/8. फाइन, कोई दिक्कत? अब बोलो सवाल. सो H का वैल्यू क्या मिल गया, a माइनस 3a/8 दैट इज 5a/8. इसलिए 1 अपॉन H का वैल्यू, ठीक है, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन कैपिटल R का वैल्यू, चूंकि इक्वल रेडियस है दोनों का, 2 अपॉन ए. दोनों को होल्ड करा दो इसमें कि वेदर दिस कंडीशन होल्ड्स वेल और नॉट. सो दिस कंडीशन होल्ड्स वेल, देन दैट इज अनस्टेबल, हेंस प्रूव्ड. अब दूसरे केस में उसने क्या किया, बोला इसको कटोरे को घुमा दो. बोला घुमाओ. तो ये जो कटोरा था इसका ये वाला सरफेस इधर ले आओ. अब ये फ्लैट हो गया, फ्लैट. चेक इट आउट. अभी ये क्या हो गया, फ्लैट पार्ट. अगर आप देखेंगे केस 2 में, अभी ये वाला पॉइंट इन कांटेक्ट है, कर्व्ड सरफेस कांटेक्ट में नहीं है. तो अभी स्मॉल r क्या था, रेडियस ऑफ द सरफेस विच इज इन कांटेक्ट. तो अब कांटेक्ट में क्या है, ये सीधा का सीधा प्लेन. तो इसके लिए स्मॉल r क्या हो जाएगा, इंफिनिटी. कैपिटल R क्या है, लेट्स से कैपिटल A. अभी ये पॉइंट अगर O है यहां से और ये G है अगर, तो OG कितना था, अभी बोला 3a/8 फॉर हेमीस्फीयर. बस हो गया काम. अब चेक कर लो कि 1 अपॉन H इज क्या है, लेस और इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस R, और 1 अपॉन H इज ग्रेटर देन. अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई तो स्टेबल और इसमें अनस्टेबल. हो गया बात, क्लियर है? अभी कोई डाउट किसी को भी? बस यहां पे ख्याल रखना, स्मॉल r हाउ टू चूज. अब कर्व्ड सरफेस नहीं है, प्लेन आ गया, तो इसके लिए r क्या होगा, इन्फिनिटी, स्मॉल r इन्फिनिटी. पुट कर दिया, सवाल हो गया. क्लियर? एक और सवाल यही मन मर्जी आएगा तो सपोज दैट, अगला ही वाला शायद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2. एक आइसोसेलेस लैमिना ले रखा है, ठीक है बच्चे. लेट्स से दिस इज इन कांटेक्ट. अब कांटेक्ट में ये सरफेस है ना, तो स्मॉल r क्या हो गया, इन्फिनिटी. कैपिटल R क्या है, इसका जो भी रेडियस दिया होगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए मैंने क्या बोला था, इफ दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी BD, in the starting I told you, so BG equals to 2y3 BD. यहां मैंने स्टार भी मार्क कर रखा है in the PDF what you have been provided. अभी मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस कांटेक्ट से, लेट्स से दिस इज द पॉइंट N, तो NG मेरा जो है दैट इज माई H. क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R पता चल गया, H पता और करना है. अब ये डिस्टेंस आपको पता है 2/3 BD. आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, उसकी प्रॉपर्टी यूज करके यू जस्ट ट्राई टू नो व्हाट इज NG एंड अप्लाई हियर इन द फॉर्मूला either this or that.
you will get the condition of stable or unstable equilibrium. Am I clear to you all? The same manner, example 3 देखिए आप, हेमीस्फीयर है, स्क्वायर उसके ऊपर रख दिया है, तो स्क्वायर रखा है तो फ्लैट है, स्मॉल r इज इन्फिनिटी, कैपिटल R इज a, स्क्वायर के लिए CG क्या होगा, बस वो h लिख दीजिए, हो गया काम। क्लियर है या नहीं? मजा आया? ओके अभी आगे वाले जो क्वेश्चंस है दोज आर आल्सो वेरी इजी, बस मैं अगला छोटा सा एक लेक्चर और लूंगा इन क्वेश्चंस स्पेशली को करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्योमेट्री में आप कहाँ फंस सकते हैं, आई विल टेल यू देयर। सो पार्ट 2 विल बी समथिंग लाइक ट्यूटोरियल क्लास। एनी डाउट, एनी इशू? So this is a stable and unstable equilibrium from my side. I suggest you to go through the lectures आराम से। The point is फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जितना क्लियर कट आप रखेंगे, सेकेंड टाइम में आपको उतना टाइम रिड्यूस होता जाएगा। बिकॉज वाई आई हैव बिलीव ऑन दैट, बिकॉज आई माई सेल्फ हैड डन इट एंड आई फील कि कहाँ पे टच करना है, कहाँ पे बच्चा फंस सकता है। सो व्हेन यू सी दिस पीडीएफ्स ना, यू विल सी स्टार समवेयर देयर, मैंने वहाँ पर लिखा भी होगा कि ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये यहाँ पे। सो दोज आर नॉट रेयरली द पीडीएफ्स, ओके, merely those are class notes for you. So keep learning, keep enjoying the lectures. We'll meet in the next lecture with the questions. Although I suggest you to go through those questions also, बस वहाँ CG अगर दो बॉडीज हैं तो एक ही क्रक्स में आपको बता रहा हूँ, दो बॉडीज अगर आपके पास हैं तो उनका जो CG है वो एक मीडियन, एक हम मीडियन के थ्रू निकालते हैं, दैट इज बाई वार इज लोअर बॉडी का वेट या मास जो भी आप ले रहे हैं और उसका CG, अपर बॉडी का CG डिवाइडेड बाई। तो ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सिखाया जाता है और इसके लिए अब आप वही, यही आपका H हो गया या Z, जो भी आप इसको कंक्लूड करते हैं। तो आगे के क्वेश्चन भी यू कैन ट्राई, स्टिल आई विल टेक द ट्यूटोरियल क्लास। ओके, चलो, गुड लक।